monophysic liquid dosage form. This is the fifth chapter which is included in a pharmaceutic. Second, first is prescription, after that is second is incompatibility, third is posology, and fourth is powder dosage form, that is powder. After that, the fifth chapter which is included in your syllabus, that is monophysic liquid dosage form. In the previous lecture we have to discuss the already we have to learn the introduction which is related to monophysic liquid dosage form. We can say that the preparation, liquid preparation containing two or more components in one phase system. Focus on monophysic means, mono means simple or single, monophysic single phase system called as a, or we can say that a single phase system. It is represented by true solution. After that, the true solution means a clear homogeneous mixture. We can say that the monophysic liquid dosage form, and it is prepared by dissolving solute in a suitable solvent. After that, the true solution is which is included that the in a solution the large quantity which is present, we can say that the solvent. After that, the where the component which is present in a small quantity called as solute, which is called as true solution, or also called as a monophysic liquid dosage form. This is the introduction which is related to monophysic liquid dosage form. After that, the next is some of the advantages which is related to monophysic liquid dosage form, and after that the next is disadvantages. The next then the next is most important parts in the classification which is based on monophysic liquid dosage form. First is there are two subtype of monophysic liquid dosage forms. First is liquid used for internal administration, and the second is liquid used for external administration. Okay, there are four example which is included in the liquid used for internal administration. First is syrup, second is mixture, then the elixir, and then the linctuses. In the already we have to study the mixture example, then we have to study the syrup, elixir, and linctuses, all of this. Okay, then the liquid meant for external administration, there are three subtype. In that, example is included. First is liquid applied to the skin, example is lotion, liniment, after that paints, collidons. The next is liquid used in a mouth, gargles, mouthwash, throat paints. Then the next is liquid instilled into body cavities, example douches, ear drops, nasal drop, eye drop, and enemas. Okay, all of this classification one by one we have to study it. Okay, next one is the example that is used for internal purpose, that is mixture. We have to study the already in the previous lecture all of these classification, their classification, mixture classification, their subtype, and advantage, disadvantage, and the definition. Just I have to revise the this previous lecture in 2 to 3 minutes. Focus on this: introduction, definition, advantage, disadvantages, classification, formulation, and storage. In the today's lecture we have to study the next part, that is formulation and storage. Okay, just I have to the question which is IMP according to your exam, that is what are the suspension. Suspension is a chapter. There is sixth chapter, or we can say that biphasic liquid system. In that, suspension and emulsion are included. This chapter we have to study it in the next lecture. Okay, after the completion of a monophysic liquid dosage form, we have to study the biphasic liquid system or biphasic liquid dosage form, that is suspension and emulsion. Before that, we have to learn or see the important IMP question, that is what are the mixture, classify different type of mixture, define mixture for 2 marks, write the advantage and disadvantages of mixture, that is asking for 4 marks. Write the procedure for preparation of indiffusible mixture, 4 marks. Then the next is write the procedure for preparation of diffusible mixture with example. Differentiate between diffusible and indiffusible mixture. This is also asking for 2 marks. Then write the formulation for mixture, asking for 4 marks. Okay.
अब आपने एक एग्जाम्पल मिक्सचर की, इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है डेफिनेशन, तो आपने इसके अंदर मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके अंदर कितने टाइप इंक्लूडेड हैं, सिर्फ डेफिनेशन लिख के 2 मार्क्स से ख़त्म नहीं करना है आपको। उसके बाद आपने क्लास उसका एक मिक्सचर का एक एग्जाम्पल देना है, उसका फॉर्मूला लिखने का है उसके अंदर, ओके। तो वो एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी मिक्सचर की। एक टाइप का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि 2 ग्राम 50 का एक मिक्सचर बनाना है हमको, उसके अंदर क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आपने वहाँ मेंशन करना है एग्जाम्पल, तो ही आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। देन कुछ अगर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर प्रोसीजर, तो पूरी इंडिफ्यूजिबल सॉलिड की पूरा इन शॉर्ट में लिखना है आपको। इंडिफ्यूजिबल सॉलिड की मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसके बाद उसका नोट लिखना है, उसके ऊपर उसकी पूरी प्रोसीजर लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है मस्ट। उसके बाद आपने उसके अंदर डायरेक्शन लिखना है, जो डायरेक्शन में बताया गया था 1 टेबलस्पून टू बी टेकन 3 टाइम्स अ डे 2 टाइम्स अ डे, ये पूरी उसकी जो प्रोसीजर है, डायरेक्शन प्रोसीजर आपने उसके अंदर मेंशन करना ही करना है, ओके। दैट वी कैन आस्किंग इन योर एग्जाम्पल एंड यू हैव टू गिविंग out of or marks for that question, okay. After that the next is definition, which is we have to just revise the previous lecture, that is mixture. This is the example of monophysic liquid dosage form used for internal administration. First is mixture, then second is syrup, and third is elixir, then fourth is linctus. First is mixture, we have to learn now, just I have to revise the previous lecture. Liquid means mixture means liquid preparation, obviously used for oral administration, in which medicament or medicaments dissolved, okay, suspended or dispersed इन अ सुटेबल व्हीकल। एक सुटेबल व्हीकल के अंदर हमने मेडिकामेंट्स ऐड करना है, डालना है, उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। एक तो डिज़ोल्व करेंगे, दूसरा उसके अंदर सस्पेंड करेंगे, और दूसरा उसके बाद और दूसरा क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड करेंगे, या तो डिज़ोल्व करेंगे या तो सस्पेंड करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर ऐसे बोलेंगे। आफ्टर दैट इज द monophysic liquid dosage form or true solution. In that solute and solvent you have to add it. Just look out the solute which is presented in a small quantity and solvent which is presented in a large quantity, okay, that is called as solution. After that the definition is also given here, that is mixture is a liquid preparation used for oral administration, in which medicament or medicaments are dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle, okay. Advantages, some of the advantages which is related to mixture. After that disadvantages. Then the next is classification, which is most IMP question according to your exam, that is there are 5 types of a mixture. फर्स्ट इज सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेज। अब इसमें क्या होता है, सिंपल जो मिक्सचर था वो एज अ सिंपल मीन्स सिंपल प्रोसीजर है उसकी। देन द नेक्स्ट इज मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। थर्ड इज मिक्सचर कंटेनिंग indiffusible solids. Fourth is mixture containing precipitated forming liquids. Fifth is mixture containing only slightly soluble liquids, okay. Just I have to revise. Simple mixture means it contains only soluble ingredients. It is represented by true solution. It is a clear homogeneous mixture. Example carbonated mixture. And then the next is expectorant mixture. After that the simple mixture, that is procedure is that method of dispensing, or we can say that the procedure for preparing a formulation for simple mixture, that is dissolve solid लेना है हमने, जो मेडिकामेंट्स हम लेने वाले हैं हमने वे करके लेना है मेडिकामेंट्स। 3/4 वॉल्यूम ऑफ व्हीकल के अंदर जो व्हीकल लेने वाले, सपोज वाटर हमने लिया है व्हीकल, उसके अंदर हमने सॉलिड ऐड करना है, डिजोल्व करना है, उसके अंदर एग्जामाइन करना है उस सॉल्यूशन को बाय होल्डिंग अगेंस्ट लाइट के सामने। एक मेथड होती है, एक एपरेटस होता है, और एक टेस्ट बोलेंगे उसको। वो टेस्ट करने के लिए एक जो लाइट के सामने होल्ड करना है हमारा सॉल्यूशन। अगर फिल्टर अगर उसके अंदर एक कुछ फॉरेन पार्टिकल्स नज़र आए तो उसको क्या करने का है, फिल्टर करने का है। इफ़ कब, जब फॉरेन पार्टिकल्स फाइंड आउट होने वाले हैं उसके अंदर, अगर हमने कुछ उसके अंदर देख लिया फाइन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर कुछ दिखाई देता है, तो उसको हमने फिल्टर कर लेना है। और उसके देन द नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है उसके अंदर, ऐड अदर इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड करना है हमने, ओके। एंड देन द मोस्ट इज, उसके बाद में लास्ट में ऐड मोर व्हीकल, जो रिमेनिंग वो व्हीकल था उसके अंदर वो ऐड करना है हमको। देन नेक्स्ट इज फिल द बॉटल एंड लेबल, उसके बाद कॉर्क इट एंड क्लीन बॉटल, अटैच लेबल, रैप बॉटल एंड डिस्पेंस, ओके। ये थी सिंपल मिक्सचर की प्रोसीजर। एग्जाम्पल है कुछ, डायरेक्शन है, ये क्या दूसरा एग्जाम्पल है और उसका डायरेक्शन है। द नेक्स्ट इज मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मिक्सचर, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, ओके।
अब डिफ्यूजिबल सॉलिड मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम, जस्ट रिवाइज। डिफ्यूजिबल सॉलिड आर इनसोल्यूबल, सिंपल मिक्सचर के अंदर सॉलिड सोल्यूबल था, लेकिन डिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर डिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर सॉलिड आर इनसोल्यूबल है। क्या बोलेंगे, वाटर जो व्हीकल हमने लेना है उसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, लेकिन जो सॉलिड इंग्रेडिएंट है वो व्हीकल के अंदर इनसोल्यूबल है, उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता। देन द नेक्स्ट इज इन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द व्हीकल ऑन शेकिंग, लेकिन जो हमने सॉलिड उसके अंदर ऐड कर रहे थे वो इनसोल्यूबल था, लेकिन जैसा भी हम उसको शेक करेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, शेक करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो सॉलिड पार्टिकल थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। उसे ही हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब क्या, डिफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा तो इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसा भी हम उसको शेक करेंगे जो पूरे सॉलिड पार्टिकल है वो मिक्सचर के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर पूरा मिक्स हो जाएंगे। इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, उससे दैट्स वी हैव टू सेट दैट मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। एग्जांपल बिस्मथ कार्बोनेट, सेकंड बिस्मथ सबनाइट्रेट, थर्ड इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। आफ्टर दैट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग इज, पाउडर ड्रग लेना है हमने मोटर के अंदर, सोल्यूबल ड्रग उसके अंदर ऐड करना है और उसको मिक्स करना है। देन आफ्टर दैट मेजर 3/4 ऑफ व्हीकल, जो 3/4 व्हीकल लेना है उसके अंदर ऐड करना है उस मोटर के अंदर, उसका स्मूथ मेरे को स्मूथ क्रीम पेस्ट बनानी है उसके अंदर, और जो रिमेनिंग पोर्शन में जो बचा हुआ हमारा व्हीकल है वो उसके अंदर ऐड करना है। ट्रांसफर कंटेंट फ्रॉम मोटर इनटू मेजरिंग एपरेटस, अब हमने मेजर करना है वो हमारा सॉल्यूशन मेजरिंग एपरेटस के अंदर डाल के उसको मेजर करेंगे। ऐड जो रिमेनिंग व्हीकल हमने बचा हुआ था वो उसके अंदर ऐड करना है, और जो ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट रिमेनिंग थे वो भी उसके अंदर ऐड करना है। फाइनल वॉल्यूम में कब करना है, फिल इन द बॉटल एंड लेबल कॉर्क मतलब अच्छे से जो ऊपर का कैप है उसकी, जो बोतल का ढक्कन है उसे अच्छे से लगाना है। अटैच लेबल, शेक वेल बिफोर यूज़, ये अब स्पेशल इंडिकेशन है इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर। जो मिक्सचर बनाते हैं हम डिफ्यूजिबल सॉलिड के, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था बॉटल के ऊपर आप पढ़ेंगे, देखो सिरप या कुछ प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, जो लिक्विड प्रिपरेशन उसके ऊपर लिखा जाता है सॉल्यूशन सस्पेंशन के ऊपर स्पेशल इंडिकेशन होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़। कुछ ऐसे मेडिकेटेड शैम्पू भी होते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि यूज़ करने से पहले उसको शेक करना है। आपको शेक क्यों करना है, इसलिए शेक करना है कि जो सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं वो उसके अंदर मिक्स नहीं होते, लेकिन जैसा भी आप मिक्स करेंगे उसको तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो जो सॉलिड होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, तो आप उसे अच्छे से और इजीली उसको आप लगा सकते हैं और ले सकते हैं। ओके, this is the procedure which is used for method of dispensing. This is the method, and we can say that the procedure. After that, next is some of the example, that is magnesium sulfate and magnesium carbonate, and peppermint example is given here. Magnesium sulfate 15 gram, magnesium sulfate 15 gram, magnesium carbonate 2 gram, peppermint water 90 ml, and prepare a mixture 1 tablespoon to be taken 2 hours before breakfast. ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे पहले आपने ये सॉल्यूशन इनटेक करना है। ओके, 1 टेबलस्पून फुल लेना है आपको। अब जो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है मिक्सचर का वो है मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। जैसे कि हमने डिफ्यूजिबल के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं थी, वैसा लेकिन जो मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है इसके अंदर भी वही होता है। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं सॉलिड, जो मेडिकामेंट होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं व्हीकल के अंदर, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द व्हीकल ऑन शेकिंग और नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन अ व्हीकल फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि हमने डिफ्यूजिबल में देखा था कि इंसोल्यूबल होते हैं सॉलिड पार्टिकल, लेकिन जैसे भी हम शेक करते हैं तो वह डिजॉल्व और सोल्यूबल हो जाते हैं। वैसा इसमें नहीं होता, हम इसको शेक करेंगे तब भी जो सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अंदर डिजॉल्व और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे तो लॉन्ग टाइम के वास्ते वो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके अंदर। तो एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर का और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का, वो ये है कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्विनिन सैलिसिलेट, कैलोमेल, फिनिसिटिन चाल्क पाउडर। सस्पेंडिंग ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, सो सस्पेंडिंग एजेंट आर एडेड इन फॉर्मुलेशन। ओके, इसके अंदर आप सस्पेंडिंग एजेंट मस्ट है, हमने इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट मस्ट है, हमको रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर 2 टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, वो हमने इस इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर के अंदर डालने होते हैं। तो वो फर्स्ट है कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर है, देन सेकंड इज ट्रगाकैंथ म्यूसिलेट
म्यूसिलेज है, तो कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 20% आकाशिया, 15% ट्रगाकैंथ और 20% स्टार्च एंड रेस्ट सुक्रोज ये ऐड ये सब मिलाकर कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर बनाते हैं। इन द पोर्शन ऑफ 2 ग्राम 100 ml का सोल्यूशन बनाना है तो 2 ग्राम हमने ट्रगाकैंथ पाउडर उस मिक्सर के अंदर ऐड करना है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म। अभी ये जो ट्रगाकैंथ ये कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर है, इसके अंदर हमने व्हीकल जो व्हीकल लेते हैं हम, जो सोल्यूशन बनाना है जो व्हीकल लेते हैं, जैसा कि हम वाटर लेते थे, लेकिन ये इसमें क्या बताया गया है कि अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म और वाटर छोड़ के दूसरा हमने व्हीकल लेना है और उसके अंदर ये इंडिफिजिबल सॉलिड का जो मिक्सचर है वो बनाना है हमने और वो सोल्यूशन बनाना है हमने। देन देख लेते हैं कि ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज ये दूसरा सस्पेंडिंग एजेंट है जो हमने इंडिफिजिबल सॉलिड के अंदर ऐड करना है। इन द पोर्शन ऑफ 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ये हमने 1/4 लेना है हमने ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज, मतलब 1 ग्राम लेंगे सोल्यूशन के अंदर हमारे 100 ml है या तो 50 ml है सोल्यूशन, उसके अंदर 1 ग्राम हमने ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज ऐड करना है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। अभी पहले वाला देखे थे कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर, उसमें वाटर और क्लोरोफॉर्म छोड़ के दूसरा व्हीकल लेना है हमने सस्पेंडिंग एजेंट डिजोल्व करने के लिए। और जो ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज है ये हमने वाटर में ही, वाटर और क्लोरोफॉर्म में ही हमने ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज ऐड करना है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट बोल के, और वो हमारा जो प्रिपरेशन है जो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड का जो मिक्सचर है उसके अंदर वो ऐड करना है हमने। ओके, दिस इज यूज्ड फॉर मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड। आफ्टर दैट दिस इज द मेथड फॉर डिस्पेंसिंग for compound tragacanth powder or tragacanth mucilage. Okay, this is one for compound tragacanth powder and this is one for tragacanth mucilage. After that there is the example which is used for indiffusible solid. For the example is RX, means you take PPT precipitate chalk powder 30 grain, Ketachu tincture 20 minimum, cinnamon water 1 fluid once. Directions सेकुंडिस होरा सुमिंडा। अब ये जो डायरेक्शन है ये 30 ग्रेन 20 ग्रेन आपने नोट्स निकाले होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो एम्पिरिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर ये सब इससे रिलेटेड है। 30 ग्रेन मतलब कितनी क्वांटिटी, 20 मिनिमम मतलब कितनी क्वांटिटी और क्या होता है वो। ओके, अब डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपने एग्जाम में पूछा जाता है, आपने अच्छे से उसको नोट डाउन करना है और लिखना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजिबल मिक्सचर एंड इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज देयर इज द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड। सर्टन लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन रेजिनस मैटर, कुछ लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर रेजिनस मैटर ऐड करना होता है। व्हेन मिक्सड विथ वाटर, अब जब वो रेजिनस मैटर उस वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो पीपीटी फॉर्म हो जाएगी, तो विच में एडियर, जो पीपीटी फॉर्म होती है विच में एडियर हो जाती है वो टू साइड्स ऑफ बॉटल, बॉटल के साइड को एडर हो जाती है और फॉर्म अ क्लॉटेड पीपीटी, और पीपीटी क्लॉट हो जाता है वो। उसके बाद दिस विल नॉट रीडिफ्यूज अपॉन शेकिंग। जैसा हमने सिंपल मिक्सचर और डिफ्यूजिबल मिक्सचर में देखे थे कि जैसा हम शेक करेंगे उस प्रिपरेशन को, तो वो जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं उस मिक्सचर के अंदर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम शेक करने के बाद भी जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो रीडिफ्यूज मतलब पूरा अच्छे से मिक्स नहीं होते। For that, to prevent this, we have to add suspending agent in this precipitate forming liquids. Example, resin extract tinctures. Okay. After that, the method of dispensing. ये जो मेथड है वो डिस्पेंसिंग मेथड है, ये सब ने हमने स्टडी किया है। जस्ट आई हैव टू रिवाइज। ओके, जैसे जैसे हमने एक सॉलिड लिया है, ट्रगाकैंथ पाउडर लिया है, उसके बाद दोनों को ट्राइचुरेट करेंगे और थोड़ा सा उसके अंदर व्हीकल डालकर उसको स्मूथ क्रीम प्रिपेयर करेंगे। ऐड प्रिसिपिटेट फॉर्म, देन उसके बाद जो प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड होता है हमारा वो उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, जो रिमेनिंग पोर्शन है व्हीकल का वो उसमें ऐड करना है हमने। एग्जामाइन करना है, अगर सोल्यूशन के अंदर फॉरेन पार्टिकल है तो उसको फिल्टर कर लेना है। ओके, ऐड अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट, जो बचे हुए अदर इंग्रेडिएंट हैं लिक्विड वो उसके अंदर ऐड करने हैं। सोल्युबल इंग्रेडिएंट आल्सो ऐड इन दिस solution. Make the final volume with the vehicle. Okay, this is the method used for dispensing of precipitate forming liquids. After that ये हमने देखा था कि सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है तो 2 टाइप के ऐड करेंगे हम। एक तो कंपाउंड ट्रगाकैंथ पाउडर के वास्ते ये एक है, और दूसरी थी ट्रगाकैंथ म्यूसिलेज के वास्ते ये जो मेथड है सेम वही मेथड है। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल is given here also
पोटेशियम आयोडाइड 2 ml, टिंचर लोबेलिया ईथर 4 ml, टिंचर स्ट्रोमेनियम 60 ml, क्लोरोफॉर्म वाटर एड अप टू 90 ml. Direction: 1 dessert spoonful to be taken 4 times a day. After that, mixture containing slightly soluble liquid. अब स्लाइटली सोल्यूबल है, पूरा है क्या नहीं है. द इंसोल्यूबल पोर्शन ऑफ अ स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड इज नॉट रेडियली डिफ्यूजिबल. जैसे कि ये पूरा सोल्यूबल नहीं है, स्लाइटली सोल्यूबल है सोल्यूशन के अंदर. सो इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट सच एज सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो हियर वी कैन एड इट. That is tragacanth powder, also tragacanth mucilage are added to dispense such a mixture. इस टाइप की मिक्सचर डिस्पेंस करने के लिए इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड है, क्योंकि पूरा सोल्यूबल नहीं है, स्लाइटली थोड़ा सा सोल्यूबल है, तो इसके अंदर हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है. एग्जाम्पल पैराल्डिहाइड लिक्विड. ओके, एग्जाम्पल दैट इज पैराल्डिहाइड इज 4 ml, सिरप इज 8 ml, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लिसराइज 2 ml एंड वाटर अप टू 30 ml. डायरेक्शन: टेक एज अ डायरेक्टेड. जैसे फिजिशियन और डॉक्टर बताती हैं उसी तरह से हमने ये मिक्सचर लेना है. ओके, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग है इसकी. आप जो नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है, वो पूरा मैंने लेक्चर तकरीबन पूरा लेक्चर कवर करते करते 20 मिनट्स हो गए. अब जस्ट थोड़ा सा जो पार्ट रिमेनिंग है मिक्सचर का. ओके, आई हैव टू सेड ओनली मिक्सचर. ये हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन था, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं. एक इंटरनल के लिए होता है, दूसरा एक्सटर्नल के होता है. इंटरनल के अंदर जो टाइप है, इंटरनल के अंदर जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट मिक्सचर, देन सिरप, एलिक्सर, एलिंगटन. उसके अंदर का जो सब एग्जाम्पल था मिक्सचर, उसके अंदर के सब क्लासिफिकेशन था जो हमने स्टडी कर लिया. अब हम देखते हैं उसका फॉर्मुलेशन, उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशन हमने स्टडी करना है. तो फॉर्मुलेशन मतलब क्या, फॉर्मुलेशन के अंदर क्या बताने आएगा हमको, कि अब हम प्रिपरेशन बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं. कोई भी टैबलेट है, जैसे कि हमने देखा था टैबलेट की प्रोसीजर कैसी थी. जो पाउडर लिया था, वेकर के पाउडर लिए, उसके अंदर एक डफ स्टार्च का जो पेस्ट होती है वो डाल के एक डफ तैयार करें. एक बोले तो वो एक ऐसा बनाए थे डफ हमने. उसको फिर सीविंग करे थे. सीविंग करने के बाद उसको हॉट एयर ओवन में रखे थे 1 घंटे के बाद. फिर उसको सीव करे थे. फिर उसके ऊपर वो परफ्यूम जैसे बोलेंगे उसके ऊपर ऐड करे थे. ये सब प्रोसेस थी फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन मतलब क्या करेंगे, अभी जो हम मिक्सचर बनाएंगे, फॉर्मुलेशन कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मुलेशन में क्या क्या हमने ऐड करना है. जैसे कि सस्पेंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट कैसे ऐड करेंगे, ड्रग कैसे लेना है, वे करना है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है. तो जो हमारा प्रिपरेशन है लॉन्ग टाइम अच्छे से रहने के वास्ते, वो जो उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब लिखनी है हमने. कितने क्वांटिटी में कितना एक्टिव मेडिकमेंट उसके अंदर डालना है हमने. स्टेबलाइजर और स्टेबलाइजर उसके अंदर हमने ऐड करना है. प्रिजर्वेटिव उसके अंदर ऐड करना है. बाइंडिंग एजेंट है तो डालना है. और लिक्विड इंग्रेडिएंट जो क्या, ये सब क्या है, ये क्या बोलेंगे उसको, फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन मतलब क्या क्या आता है. एक तो व्हीकल कौन सा लेने वाले हम, वाटर लेने वाले हैं क्या, उधर जो दूसरा व्हीकल लेंगे वो उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि वो देखेंगे. उसके बाद एडजुवेंट्स मतलब दूसरा जो सस्पेंडिंग बोलेंगे, बाइंडिंग बोलेंगे, स्टेबलाइजर बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव बोलेंगे. ये सब एडजुवेंट के अंदर आ जाता है. जैसे कि कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है इसके अंदर हम कैसे ऐड करेंगे, उसका एक क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन. तो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन के अंदर हम फर्स्ट क्या लेते हैं, ड्रग लेते हैं. एक्टिव जो मेडिकामेंट होता है, जो प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फर्स्ट, उससे हमने प्रिपरेशन बनाना है. सेकंड है व्हीकल एंड थर्ड है एडजुवेंट्स. सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस फॉर्मुलेशन. फर्स्ट इज ड्रग. अब ड्रग मतलब एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है. फॉर्मुलेशन बनाते हैं ना हम, जैसे कि दवाई है कुछ एंटीपायरेटिक, मतलब टेम्परेचर हमारा बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए एंटीपायरेटिक क्या है, हमारा एक्टिव मेडिकामेंट. पैरासीटामोल जो टैबलेट है, पैरासीटामोल जो ड्रग है वो एक्टिव मेडिकामेंट है. तो वो टैबलेट जो बनाएंगे हम, तो उसके अंदर है एंटीपायरेटिक ड्रग हमने ऐड करना है. तो वही बताया गया है कि ड्रग कौन सा लेने वाले हैं फॉर्मुलेशन में. फॉर्मुलेशन जो होता है एक मेडिकेटेड होता है और एक नॉन मेडिकेटेड. नॉन मेडिकेट मतलब जो भी हम सोल्यूशन लगाते हैं. मेडिकेट मतलब इंटरनल पर्पज़ के लिए हम लेते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक सोल्यूशन है, प्रिपरेशन है, जो भी है एक्सेट्रा, वो क्या होता है, ड्रग. जो एक्टिव मेडिकामेंट होता है उसे हम ड्रग बोलते हैं. देन जो नेक्स्ट है जो व्हीकल. अब फॉलोइंग द व्हीकल है. अब व्हीकल के अंदर हम जो हमारा फॉर्मुलेशन सोल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर जो मेन पर्पज़ है व्हीकल, वाटर ले, या तो हम वाटर ले सकते हैं, या तो एरोमेटिक वाटर ले सकते हैं, या तो मेडिकेटेड व्हीकल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मुलेशन के लिए. जैसे कि हमने मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर के लिए हमने वाटर ले सकते हैं, एज अ प्यूरिफाइड वाटर हमने लेना है इसके अंदर.
जो जैसा कि हम व्हीकल में वाटर लेते हैं तो फर्स्ट देखते हैं हम वाटर के अंदर हमने क्या करना है, प्यूरिफाइड वाटर हमने लेना है। ओके, जो भी हम प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसके लिए हमने प्यूरिफाइड वाटर ही मस्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। ओके, इसके अंदर हमने पोर्टेबल POTABLE पोर्टेबल वाटर यूज नाही करना आहे। पोर्टेबल मतलब जो नळाचं पाणी जे असते ते आपल्याला यूज नाही करायचं, आपल्याला डिस्टिल वाटर यूज करायचं आहे प्रिपरेशन किंवा फॉर्मुलेशन बनवण्यासाठी। पोर्टेबल वाटर लेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर जे नळाचं पाणी आहे त्याच्यामध्ये वोलाटाईल किंवा नॉन वोलाटाईल इम्प्युरिटीज असतात, त्यामुळे ते आपल्याला यूज न करायचं आहे। आपल्याला कोणतं यूज करायचं आहे, प्युरिफाइड वाटर यूज करायचं आहे। आपल्याला क्या करना है कि हमने मोस्टली प्युरिफाइड जो वाटर होता है वही हमने फॉर्मुलेशन की वजह से यूज़ करना है। पोर्टेबल म्हणजे जे नळाचं पाणी आहे त्याच्यामध्ये वोलाटाईल किंवा नॉन वोलाटाईल जे इम्प्युरिटीज जे असतात ते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, त्यामुळे ते आपल्याला घ्यायचं नाही आहे। प्युरिफाईड वॉटर आपल्याला घ्यायचं आहे। आणि आपण काय होईल की जे आपण पोर्टेबल वॉटर घेतो त्याच्यामुळे काय होणार की अनडिझायरेबल जे चेंजेस असतात ते पण त्याच्यात होऊ शकतात। त्यासाठी आपल्याला नॉन वोलाटाईल म्हणजे पोर्टेबल जे वॉटर आहे ते आपल्याला घ्यायचं नाही, प्युरिफाईड वॉटरच आपल्याला घ्यायचं आहे ह्याच्यात। आणि काही ठिकाणी कसं असतं की आपण समटाईम फ्रेशली बॉईल्ड किंवा बॉईल करून कूल केलेलं वॉटरही खूप छान असतं प्रिपरेशनसाठी, किंवा जे व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया किंवा काहीतरी बॅक्टेरियाची वगैरे ग्रोथ न होण्यासाठी आपण फ्रेशली बॉईल आणि थोडंसं कूल केलेलं वॉटरही खूप प्रेफरेबल असतं फॉर्मुलेशनसाठी। देन द नेक्स्ट इज ॲरोमॅटिक वॉटर। आता अब इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक वाटर मतलब क्या होता है, दीज आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल और वोलाटाइल सब्सटेंसेस इन प्यूरिफाइड फॉर्म में प्यूरिफाइड वाटर से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वोलाटाइल ऑयल और वोलाटाइल जो सब्सटेंस होता है उससे प्रिपेयर करते हैं एरोमेटिक वाटर। तो वो हमने एज ए एरोमेटिक वाटर बोल के भी हम व्हीकल बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो such as camphor water, chloroform water, peppermint water and cinnamon water, all of these are the aromatic waters we have to use in the formulation of mixture। okay, then the next is medicated vehicle। अब मेडिकेटेड व्हीकल मतलब क्या है, मेडिकेटेड मतलब एज अ नेम इंडिकेटेड इन दैट द ड्रग और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज एडेड इन द व्हीकल। जो व्हीकल लेने वाले हम व्हीकल के अंदर एक एक्टिव मेडिकामेंट हमने ऐड करना है और उसका एक प्रिपरेशन बनाना है और वो एज अ व्हीकल बोल के यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के अंदर, तो उसे मेडिकेटेड व्हीकल ऐसे बोलेंगे। तो समटाइम व्हीकल विथ अ डेफिनाइट थेरापेटिक एक्टिविटी प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ टाइम में क्या होता है कि व्हीकल जो बनाते हैं उसके अंदर डेफिनाइट थेरापेटिक एक्टिविटी प्रिपेयर करना होती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, तो वो एज अ मेडिकेटेड व्हीकल बोल के हमने लेना है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड जेंटियाना इन्फ्यूजन। जो कंपाउंड जेंटियाना इन्फ्यूजन मतलब क्या है, आप यहाँ पर बताया कि इन्फ्यूजन मतलब एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं हम रेमेडी से। जो भी एक यहाँ पर सिनेजिया इन्फ्यूजन बोलेंगे तो सिनेजिया एक ड्रग है और एक कंस्टिट्यूट है जेंटियाना वो बोलेंगे उसे, जेंटियाना इन्फ्यूजन वो बोलेंगे। तो वो एक उस जो सिनेजिया और जेंटियाना जो रहते हैं ये ड्रग और एक कंस्टिट्यूट होता है, तो उसका एक्सट्रैक्ट बना के हमने एज अ व्हीकल के अंदर डालना है और उसको मेडिकेटेड व्हीकल बोल के यूज़ करना है एज ए एक्सपेक्टोरेंट बोल के। तो ये जो सिनेजिया और जेंटियाना इसे बोलेंगे तो ये एज अ एक्सपेक्टोरेंट बोल के यूज़ होता है, तो वो उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। इन्फ्यूजन मतलब क्या, एक जो ड्रग होता है और सब्सटेंस होता है कोई भी, उसका एक्सट्रैक्शन करके जो कॉन्सनट्रेटेड जो प्रिपरेशन होता है, जो लिक्विड बनता है मिलता है उसमें से, उसे इन्फ्यूजन बोलेंगे। और वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट होता है, वो उसकी एक एक्टिविटी होती है एक्सपेक्टोरेंट बोल के, तो वो एज अ व्हीकल के अंदर हम ऐड करके और मेडिकेटेड व्हीकल बोल के हमने यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के अंदर। ओके, ये थे व्हीकल, एक तो था वाटर, दूसरा एरोमेटिक वाटर, देन द थर्ड इज मेडिकेटेड व्हीकल। देन द नेक्स्ट इज अब एडजुवेंट्स देखेंगे हम एडजुवेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट जो था ड्रग, सेकंड जो था व्हीकल एंड द थर्ड इज एडजुवेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि एडजुवेंट्स आर जनरली यूज्ड, जो भी एडजुवेंट्स मतलब क्या, जनरली यूज्ड टू इम्प्रूव द सेफ्टी, इफिकेसी एंड पैलेटेबिलिटी, मतलब इनटेक करने के लिए जो भी हम एडजुवेंट्स डालते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर उसे एडजुवेंट बोलेंगे। वो क्या करते हैं, एडजुवेंट इम्प्रूव करते हैं सॉल्यूशन का जो स्टेबिलिटी होती है और जो इफिकेसी और सेफ्टी होती है, जो पैलेटेबिलिटी होती है उस सॉल्यूशन की, वो इम्प्रूव करते हैं। वो ऐड करने के बाद जैसे हम फॉर्मुलेशन लेते हैं उसके अंदर एक वाटर एज अ व्हीकल लेके सॉल्यूशन बनाए एक्टिव मेडिकामेंट डाल के, अगर उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो वो उसकी एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और वो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ
प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी और इफिकेसी और पैलेटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमने उसके अंदर स्टेबलाइजर और क्या बोलते हैं प्रिजर्वेटिव ऐड करना है। तो वो ऐड करेंगे तो उसकी इफिकेसी और सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए एडजुवेंट्स हमने मस्ट है, पूरे जो भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसके अंदर हमने एडजुवेंट्स ऐड करना होता है। तो एडजुवेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, एक तो है केमिकल स्टेबलाइजर, देन से प्रिजर्वेटिव, देन द कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ओके, ऑल ऑफ दिस आर द वी कैन से दैट द एडजुवेंट्स। फर्स्ट सी द एडजुवेंट दैट इज केमिकल स्टेबलाइजर। केमिकल स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है, आप वो स्टडी करेंगे हम। केमिकल स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है कि कुछ जो केमिकल, सर्टन कुछ केमिकल क्या होता है उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीडेशन होता है उसका कुछ प्रिपरेशन के अंदर और फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ऑक्सिडेशन होता है मतलब क्या होता है की जसं ते आपण ओपन केलं त्याला, म्हणजे प्रिपरेशनला ओपन करतो, ते इनटेक करतो आणि बंद करून ठेवतो, तर काय होणार आहे, एक उग्रवास रॅन्सिडिटी प्रोड्यूस होणार आहे त्याच्यामध्ये। रॅन्सिडिटी मतलब क्या, एक उग्रवास त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होतं, वेगळंच स्मेल यायला लागतो त्या प्रिपरेशनला। तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, केमिकल जे स्टॅबिलायझर होतात, जे केमिकल स्टॅबिलायझर म्हणजे काय की जे की त्या फॉर्मुलेशनची स्टॅबिलिटी म्हणजे स्टेबिलिटी, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है मतलब 1 साल 2 साल, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट से जो एक्सपायरी डेट होती है वो बढ़ा देता है। तो उसको केमिकली उसको स्टेबलाइज कर देता है, इतने दिन तक वो अच्छे से टिक सकेगा। जैसे उसको इनटेक करेंगे, उसको बंद करके ओपन करके ओपन करके हम इनटेक करेंगे और लगाएंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईजिली वो केमिकली स्टेबलाइज हो जाएगा अपने आप। जैसे कि हम उसके अंदर केमिकल जो ऐड करते हैं स्टेबलाइजर, उसके अंदर ऐड करने के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल जो स्टेबलाइजर होते हैं वो उसके अंदर हमने ऐड करना है। जैसे भी वो ऐड करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए पूरे जो फॉर्मुलेशन होते हैं हमारे उसके अंदर केमिकल जो स्टेबलाइजर होते हैं वो ऐड करने होते हैं। सच एज एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट, एग्जांपल एक्सकॉर्बिक जो एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर डालना ही डालना है। कौन सा भी प्रिपरेशन आप लो उसके अंदर हम जैसे भी उसे इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद क्या हो जाएगा कि रैंसिडिटी उसके अंदर मॉइस्चर में से, एनवायरनमेंट में से एयर उसके अंदर चली जाएगी, उसकी वजह से रॅन्सिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। रॅन्सिडिटी मतलब उग्रवास त्याला येऊ लागतो किंवा त्या प्रिपरेशनला एक वेगळाच स्मेल येतो बघा। त्यामुळे काय होतं की रॅन्सिडिटी प्रोड्यूस होते। त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, त्या प्रिपरेशनमध्ये आपल्याला अँटीऑक्सिडंट ॲडच करायचं आहे। अँटीऑक्सिडंट ऐड करने के बाद जो उग्रवास आहे ना ते येणार नाही। आपण जसं इंटेक करेल त्याला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही किंवा बॅड स्मेल त्याच्यामध्ये येणार नाही। त्यासाठी आपल्याला एस्कॉर्बिक ॲसिड ॲज अ अँटीऑक्सिडंट म्हणून और केमिकल स्टॅबिलायझर म्हणून 0.1% त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आपल्याला सोल्युशनमध्ये। त्यानंतर सेकंड आहे सोडियम मेटा बायसल्फेट 0.1%। हे जे आहेत ना अँटी ऑक्सीडेंट है, ते आपल्याला प्रिपरेशन में अपन जो हमारा प्रिपरेशन है उसके अंदर हमने ऐड ही करना है एज ए एंटीऑक्सीडेंट और केमिकल स्टेबलाइजर बोल के। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों डालना है हमारा, जैसे कि हमारे प्रिपरेशन के अंदर वाटर है, जो भी प्रिपरेशन के अंदर वाटर हम लेते तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो लिक्विड होती है उसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से हमने क्या करना है, हमारे पूरे फॉर्मुलेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड ही करना है। प्रिजर्वेटिव ऐड करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है बहुत दिनों तक लॉन्ग टाइम फॉर द लॉन्ग टाइम दिस सॉल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर, और उसको अच्छे से सेव करके हम रख सकते हैं विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ। कोई भी उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी जैसा भी हम प्रिजर्वेटिव उसके अंदर ऐड करेंगे। सच एज एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म 0.25%, बेंजोइक एसिड 0.1%, मिथिल पैराबेन, प्रोपिल पैराबेन जैसे हमने देखे थे, ये प्रिजर्वेटिव हमने उस फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। ऑब्वियसली कलर आने के लिए उसके अंदर हम कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे, सच एज कोल टार डाइज एक्सेट्रा। फ्लेवरिंग एजेंट बोलेंगे तो द फॉलोइंग फ्लेवर आने के लिए अलग अलग फ्लेवर लेके हम उस प्रिपरेशन के अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे। सच एज फ्लेवरिंग एजेंट इज एरोमेटिक वाटर, सिरप, ग्लिसरॉल, स्पिरिट, लेमन टू कवर द टेस्ट ऑफ अल्कलाइन सैटरेट, मतलब स्पिरिट लेमन यूज़ करेंगे। अल्कलाइन जो सैटरेट होता है टेस्ट होती है उसको कवर करते हुए स्पिरिट लेमन हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बोल के ऐड करते हैं। देन ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज स्पिरिट, ये क्या होते हैं, एक फ्लेवरिंग एजेंट की टाइप है जो कि हम अलग अलग फ्लेवर, जैसे केक में अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, ऐसा जो फ्लेवर होता है ना उस फ्लेवर के अंदर क्या हो जाएगा कि फॉर्मुलेशन के अंदर भी अलग अलग टाइप के जो फ्लेवर हम ऐड करेंगे ताकि अच्छे से उसको फ्लेवर आ जाए। ओके, फर्स्ट जो थे कि हमने केमिकल स्टेबलाइजर, सेकंड है प्रिजर्वेटिव, थर्ड है कलरिंग एजेंट, फोर्थ है फ्लेवरिंग एजेंट। आफ्टर दैट स्टोरेज।
Storage of mixture. Mixture are dispensed in a plain glass bottles with a uniform internal diameter. जो मिक्सचर का डिस्पेंस करेंगे प्लेन ग्लास बॉटल के अंदर हम उसको डिस्पेंस करेंगे. उसके बाद द मिक्सचर शुड बी डिस्पेंस्ड एंड सप्लाइड टू द पेशेंट फॉर नॉट मोर देन 3 days टू प्रिवेंट डिटोरेशन. मतलब जो मिक्सचर यहाँ पर क्या जो मिक्सचर हम प्रिपेयर करते हैं तो मिक्सचर जो प्रिपेयर करेंगे द मिक्सचर शुड बी डिस्पेंस्ड एंड सप्लाइड टू द पेशेंट फॉर नॉट मोर देन 3 days टू प्रिवेंट डिटेरियोरेशन. मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पेशेंट को हम मिक्सचर देते हैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे, 3 दिन से ज़्यादा उसको नहीं देंगे, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा तो उसको डिटेरियोरेशन मतलब 3 दिन के बाद जो हमारा प्रिपरेशन मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा. इसलिए 3 दिन तक ही देना है, 3 दिन के बाद नहीं देना उसको पेशेंट को मिक्सचर. ओके. द बॉटल शुड बी फिटेड विथ सुटेबल कॉर्क. जो बॉटल हमने कंटेनर लेना है फिटेड विथ सुटेबल, ऊपर का कॉर्क सुटेबल होना चाहिए विच इंश्योर इट इजी रिमूवेबल एंड प्रिवेंट स्पिलिंग ऑफ मिक्सचर. मतलब ऊपर का कैप और कॉर्क ऐसे होने चाहिए कि इजीली उसे हम इजी से उसे ओपन कर सकें और इजी से लगा सकें. तो फॉर दैट पर्पज़ टू प्रिवेंट स्पिलिंग ऑफ मिक्सचर. ऐसे क्यों करना है कि वो हमारा जो प्रिपरेशन है बंद करने के बाद लीकेज नहीं हो जाए या तो नीचे ना गिरे, इसलिए हमने अच्छा सा कॉर्क उसको अटैच करना है. ये था स्टोरेज ऑफ मिक्सचर. अब कुछ ये हमने ये जो मिक्सचर देखे थे एक टाइप था, बड़ा है ये पॉइंट, बहुत बड़ा था. तो ये पॉइंट आपने पूरे इसके लेक्चर आपने स्टडी करने हैं, उसके क्लासिफिकेशन देखने हैं, आपको स्टडी करने हैं पूरे मिक्सचर के. 5 टाइप हैं मिक्सचर के. सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंस, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड एंड मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड. देन द मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड. ये 5 सब टाइप थे मिक्सचर की. ये आपने पूरा बड़ा पॉइंट था हमने कवर कर लिया है आज. उसके टाइप, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फॉर्मुलेशन, प्रोसीजर, डायरेक्शन, मेथड. ओके, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया. और फॉर्मुलेशन भी देख लिया हमने. उसके अंदर व्हीकल, एडजुवेंट्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, केमिकल स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव एंड द लास्ट इज स्टोरेज ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर किस टाइप के कंटेनर में हमने स्टोर करना है. तो ये सब हमने देख लिया. आपने स्टडी करना है, नोट्स निकालना है, इसके आईपी क्वेश्चन भी मैंने आपको बताई थी. तो ओके, थैंक यू.